Hello and welcome. You're watching This is Exclusive with me, Shavan Sen. Ladies and gentlemen, there appears to be cracks within the India alliance. This after the three-state debacle faced by the Congress party. Remember, the Congress essentially was projecting itself as the big brother within the India alliance. That appears to have been rejected by the other alliance partners. Tonight, we get you those exclusive interviews, and not just that, a big story coming in from Jammu. All this and much more. This edition of This is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking for you at Disha. Sant Sahil Maharaj from Jammu receives a death threat via a letter allegedly sent by miscreants. Case being lodged by the police. कांग्रेस से बार बार सभी दल, हमारे नेता माननीय नीतीश जी भी, माननीय ममता जी भी और अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि आप पहले नेतृत्व, किसके नेतृत्व में हम 24 का चुनाव लड़ेंगे वो नाम तय होनी चाहिए और सीट शेयरिंग होनी चाहिए. Sign on 2 files. After Trinamool, Congress JDU puts pressure on Congress over seat sharing, says Rahul calling for unnecessary meetings. Completely wiped out in Hindi belt, Congress blames EVMs, now leaders blacken face and EVM posters in Bhopal. Big development in Disha Salian death probe, Shinde government to disclose name of investigators. Disha Salian's father speaks out, raises questions on evidence tampering, demands thorough investigation. The portrait should not be there in the assembly. I am of the strong opinion that Savarkar's photo should not be there in the assembly. Yet another Savarkar controversy in Karnataka. Congress objects to portrait in assembly, asks what's his contribution to the nation. Ladies and gentlemen, Pakistan has yet again resorted to fear-mongering in the valley. A priest from Jammu, Sahil Maharaj, received a death threat via a letter which has threatened to kill him if he did not stop promoting Sanatan Dharma in the region. Now, to give you a backstory, this priest hoisted the Indian flag in South Kashmir's Kulgam on the 26th of January 2023. After which, sometime in February, I beg your pardon, he got the audio and video call which threatened him to kill. It is to be noted that Sahil Maharaj is a Hindu saint who is also said to be the chairman of the Jai Shri Ram Trust. Republic, in fact, spoke to the priest a short while back, who has pledged to serve the nation despite the threats that he has been receiving. Listen in to that exclusive interview. श्री राम हिंदुस्तान सबसे पहले हमें थ्रेट आना शुरू हुए थे 2020 में. उससे पहले की मतलब कि एक आध बार ऐसा हुआ था, लेकिन हमने इतना वो सीरियसली लिया नहीं. 2020 में जब हमें वॉइस कॉल आई हमारे ही नंबर पे, तो उसने मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन में दी. उसके बाद तिरंगा जब हमने लहराना शुरू किया कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डांगीपुरा शहीद पार्क में और पामपोर में, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कुलगाम गुंडी क्षेत्र में, वहाँ से जब हम वापस आते हैं 26 जनवरी को जिंदा चढ़ा के, इसी साल की बात है, तो हमें 8 फरवरी को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बार बार आती है. तो हम जब उठाते हैं तो वो नकाबपोश बैठे हुए विद आर्म्ड बैठे हुए हैं, हथियारों के साथ हमें मारने की धमकी दे रहे हैं. और आज भी हो गया कि हमारी कथा चल रही डंसाल में. डंसाल गांव जम्मू जिला में ही आता है. आज 5वां दिन है हम यहीं पे रहते हैं पिछले 5 दिनों से. सुबह हम 4 बजे जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो जो पुलिस कर्मचारी था, सिक्योरिटी गार्ड, वो भागते हमारे पास आया, कहते कि आपके नाम पे एक पत्र आया है. तो जब हमने वो पत्र पढ़ा जिस पे लिखा हुआ था कि साहिल महाराज तो बड़ा भगवाधारी बनता है, सनातन की बात करता है,
और एक दिन तुझे इसी भगवे में हम लोग मारेंगे, और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस सनातन और भगवा की बात करना, तारीफ करना छोड़ दे, वरना तेरी लाश को तेरे घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। और लास्ट में उसने जो डेट लिखी हुई है, तारीख लिखी है 1/1/2024, जो हमें भी समझ में नहीं आ रही। फिर उसी वक्त पुलिस कर्मचारी ने कंसर्न एसएचओ झंझारकोटली को कन्वे किया। एसएचओ तुरंत हमारे पास पहुंचे, उन्होंने वो तालिका ले ली और वो भी पढ़ रहे थे, तो उनको वो भी असमंजस में है कि भाई 1/1/2024 इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, कि आज तो 7 तारीख है, 7 दिसंबर है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो शरारती तत्व हैं, ये जो बदमाश लोग हैं, इसके पीछे इसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपके मंसूबे हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। भाई कौन से मंसूबों की बात कर रहे हैं आप? हम सनातनी हैं, हमारा एक ही धर्म है, वो है सनातन, और हमारे एक ही राजा हैं, वो है राजा रामचंद्र, और हम किसी को राजा नहीं मानते। और मंसूबे तो यही हैं कि हम भगवादारी हैं, सनातन को बढ़ावा देंगे। वो तो आपकी गिले धमकियों से हम डरने वाले तो है नहीं। मैं कल भी सनातनी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। भगवादारी कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। आपकी धमकियों से ना ही मैं पीछे हटूंगा, ना ही जो मेरा कर्म है मैं उसे छोड़ूंगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन इनका जो बाप ये सब चीजें करवा रहा है, वो कायर इंसान है। वो जहां बैठ के छुप के देख रहा है ना, अब अच्छे से देख लो कि तेरे से बड़ा कायर कोई नहीं है कि तू सिर्फ धमकी दिलवा सकता है मुझे डराने के लिए। एक बार जाके ना पता करवा लेना कि हम किस परिवार से हैं। प्रभु श्री राम जी के परिवार से हैं, और प्रभु श्री राम जी के परिवार में धर्म नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मार दोगे ना तो मार दो। हमारे कई संतों को निशाना बनाया गया और मौत के घाट भी उतार दिया गया, लेकिन हमारे संत कभी पीछे नहीं हटे, और मैं भी नहीं हटने वाला। 26 साल की उम्र हो गई है, डटे हुए हैं। 4.5 साल की उम्र में हमने भागवत सप्ताह कथा करना प्रारंभ की थी, अपने सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू किया था, अभी तक कर रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। Well, in fact, the police is also looking into this matter, story that we'll be tracking very closely. Shifting focus now to the other exclusive interview getting to you tonight on This Is Exclusive. Ladies and gentlemen, the India alliance is breaking apart. And the same was evident in 2 instances in just 24 hours. Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, among the largest stakeholders in the India Alliance, skipped the India Alliance meeting in the national capital yesterday. In fact, a day later, Rahul Gandhi dialed Mamata Banerjee. And so did the Shiva Sena. In fact, out of the 27 India Alliance partners, only 17 showed up. And today, the JDU leader made a massive revelation. He said that Indie bloc meetings were limited to chai samosas until the seat distribution took place. His remarks drew a sharp retort from the JDU. Party spokesperson Neeraj Kumar demanded Pinto to resign as the Lok Sabha parliamentarian if he was influenced by Prime Minister Modi. Here's a full story. December 2023, the date when results of 4 states was announced, came as a big jolt for the Congress party. The Grand Old Party lost the Hindi belt. And this failure led to the India Alliance breaking apart. Almost 24 hours ago, 31 leaders of 17 parties attended the meeting, which saw Rahul Gandhi in attendance. Trinamool Congress and Shiv Sena were conspicuous in their absence at a dinner meeting of floor leaders of I.N.D.I.A parties convened by Congress President Mallikarjun Kharge. देखो, इंडिया अलायंस है, एक गठबंधन है। ये थोड़ी तानाशाही तरीके से चलने वाला गठबंधन है, नहीं। जब इंडिया हम चलाते थे तब ये उस पर चर्चा होती थी इस विषय में। इंडिया अटल जी के ज़माने की इंडिया, आज की नहीं। अगर एक किसी ने ये बात रखी है कि ये फलाना फलाना विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा हो जाएगी। While some leaders objected to partners bringing state-level disputes to the national level,
Today, it was the JDU who raised strong objections, saying that Indie bloc meetings were limited to chai samosas until seat distribution took place. माननीय नीतीश जी भी, माननीय ममता जी भी और अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि आप पहले नेतृत्व, किसके नेतृत्व में हम 24 का चुनाव लड़ेंगे वो नाम तय होनी चाहिए और सीट शेयरिंग होनी चाहिए। अगर सीट शेयरिंग नहीं होगा तो क्षेत्रीय दल सिर्फ दिल्ली आकर बैठक में चाय समोसा के लिए कोई भी नेता के पास समय नहीं है। सबको अपने अपने राज्यों में बहुत सारे अपने अपने प्रोग्राम है, बहुत सारे एंगेजमेंट। The JDU leader slammed the Congress and claimed that the party only recalled its political allies after biting the dust in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. He highlighted that Congress lost because of the disregard of its partners. He further accused that the India alliance lacks effective communication and influential leaders are not consulted. He unveiled that the coalition would only survive in 2024 if Congress put forward regional parties. जेडीयू को सीट शेयरिंग में दिया जाएगा। अगर आज सीट शेयरिंग हुआ रहता मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में सभी विपक्ष की एक बड़ी रैली होनी थी, अगर वो रैली होती हो सकता है कि उस समय वहाँ की कुछ और बनता। Can the India alliance sustain till the 2024 polls? Bureau Report, Republic TV. Now, with the Congress going all out to woo senior Samajwadi Party leaders and offering them nominations in the next general elections, the cracks within the Indie bloc in Uttar Pradesh are only likely to deepen further in the days to come. Republic spoke to Samajwadi Party parliamentarian S.T. Hassan on the widening rift, and he tried to cover up the cracks which are very well evident now. Listen in to what S.T. Hassan had to tell my colleague Harsha. ममता बनर्जी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। वो ये बैठकों में हो सकता है बिलीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेन मसला तो सीट एडजस्टमेंट का है। और जो हमारे बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश जी हों, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों, ये सब सॉफ्ट नेचर के नेता हैं और देशभक्त लोग हैं। इन्हें देश सब सर्वोपरि रखना है। देश को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना है, तो सब जानते हैं कि हमें एकजुट होकर ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई 3 राज्यों में, ऐसे में सीटों का बंटवारा बहुत अहम रखता है। आपका मानना है कि आने वाले दिनों में जो भी फॉर्मल मीटिंग है, जब तक सीटों का एजेंडा ना हो तब तक आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी मौजूद नहीं थे। एक फॉर्मल मीटिंग के लिए डेट शिफ्ट की गई है। लगता है कि आगे वाली बैठक में अपोजिशन नेता तभी होंगे जब सीटों पर बात तय होगी। देखिए, पहले तो सीटों पे बात होगी ना, जब नेता सब इकट्ठे होंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, तभी तो बात होगी। हवा में तो नहीं तय हो जाएंगी। जब साथ आएंगे, बैठेंगे और बैठेंगे, सबको मालूम है। लेकिन हर बार के एजेंडे में सीटों के बंटवारे पर कोई खुल के बात नहीं हो रही है। आपका मानना है कि अभी जो तीसरे हफ्ते में दिसंबर की जो बैठक होने वाली है, वो सीटों पर ही होगी? अब ये तो देखिए क्या एजेंडा रहेगा, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाहिर है स्ट्रेटेजी के ऊपर होगी और सीटों पे भी होगी। एक और बात, रेवंत रेड्डी का आज ओथ सेरेमनी था। ऑपोजिशन के जितने भी स्टेट्स हैं, एक से भी सीएम नहीं मौजूद था। इंडिया अलायंस की बात की जाती है, एकजुटता की बात की जाती है, और अपोजिशन के जो सीएम है वो खुद मौजूद नहीं होते हैं। तो ये भी एक रिफ्ट नहीं है? अच्छा, इसको भी आपने रिफ्ट बना दिया। अच्छा, आप लोग भी तो तलाशते रहते हो कैसे इंडिया गठबंधन को बदनाम करें। आपको मालूम है मुख्यमंत्री कितने बिजी लोग होते हैं, इनके कितने एंगेजमेंट्स होते हैं, पहले से प्रोग्राम तय होते हैं। 3 दिन के नोटिस के ऊपर मुख्यमंत्री आ सकते हैं क्या, सारे प्रोग्रामों को छोड़ के? छोटी छोटी बातों को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? सब बीजेपी भी ये चाह रही है कि घड़ी की चौथाई में यह अलायंस ख़त्म हो और वो चैन की सांस लें। अब तो उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं झांसे में हमारा मीडिया भी आ जाता। ये भी निगाहें बनी हुई है कि आखिरकार अब जब सीटों के बाद तय होगी तो क्या कांग्रेस का ही अपर हैंड होगा, या इस वक्त अपोजिशन की बराबर की मानी जाएगी, बराबर की सीट शेयरिंग होगी? ये मेरे लेवल का सवाल नहीं है, ये बड़े नेताओं से पूछिए। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि अब इक्वल पैमाने पे सीट दी जानी चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है हिंदी हार्टलैंड से? नहीं, देखिए, बीजेपी का मुकाबला कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा कर सकती है, ये क्राइटेरिया तो हो गई। लेकिन यूपी में तो समाजवादी पार्टी है।
जाहिर है यूपी के अंदर अपोजिशन में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो उसमें समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, ये मुद्दा रखा। Ladies and gentlemen, after the Congress party has been wiped out from the Hindi belt, a massive drama took place outside the Raj Bhavan in Bhopal. And yet again, the EVM blame game was back. Complaining regarding this was none other than the Congress party in Madhya Pradesh. They say that in fact, it started with the Congress legislator Phul Singh Baraya, who got his face blackened by the party leader Digvijay Singh outside the Raj Bhavan. The newly elected MLAs claimed earlier that he would blacken his face if his party rival Bharatiya Janata Party won in more than 50 constituencies. Not just this, he also went on to blacken the EVM posters and demanded that ballot papers should be brought back. The public, in fact, spoke to him a short while back. Listen in to what he had to say. मैंने प्रतिज्ञा की थी, मेरे पास एक वोट का कैलकुलेशन है जो मेरे पास रखा है कि जिस दिन भी फेयर इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेचुरल वोट उसके पास इतना नहीं है कि वो 50 एमएलए जीत पाएगी। तो मैंने कहा था कि अगर 50 एमएलए भी जीत गई भाजपा तो मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लूँगा। तो आज मैं गया, मैंने कर लिया। तो आपके साथ दिग्विजय सिंह भी आए, उनका भी आपको समर्थन था? देखिए, देश बचाने की जहाँ बात आएगी, संविधान बचाने की बात आएगी और लोकतंत्र बचाने की बात आएगी तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अगर आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागत है, ये तो बड़ी बात है। जब हमने देखा कि आपके चेहरे जब काले पोती उन्होंने और आपने खुद भी पोती, उसके बाद ईवीएम के जो पोस्टर थे उस पर भी काले पोती और उसी ईवीएम से आप जीत के आए हैं। ईवीएम से ईवीएम की विदा नहीं हुई, इस देश से डेमोक्रेसी की, इस देश की विदा हो जाएगी। जी सर, 18 के चुनाव की बात करें, आपकी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसी ईवीएम से बनी थी। जब सरकार बन जाए तो अच्छी है ईवीएम और ना बने तो बुरी। जो सरकार लूट रहा है भाजपा जैसी पार्टी से, क्या उसको इतना नादान समझते हैं आप कि वो इतने सवाल छोड़ देगा कि आप सवाल कर सकें? नहीं, सरकार लूटने के बाद अपने आप को साहूकार भी घोषित कर रहा है। वो इतना नादान नहीं है, इतना कमजोर नहीं है। ये सारे विषय उसके पास हैं, वो सबको मुंह बंद करके रखना चाहता है और उसने रख दिया है। कौन है वो साहूकार? बीजेपी। तो तेलंगाना में तो आप जीते ना, शपथ ग्रहण हुआ वहाँ पर। तो मैंने क्या कहा कि वो इतनी अनाड़ी पार्टी नहीं है। अब सारी में स्वीप कर जाती तो तेलंगाना सब चल जाते कि तो भाजपा ने कर दिया। अब क्या कह रहे हैं मालूम है? तो तेलंगाना कैसे जीत गए, आप कैसे जीत गए? तो वो इतनी नादान पार्टी नहीं है कि आपके लिए ये सवाल छोड़ देगी कि वो जीत जाएंगे। आज भी साहूकार कह रहे हैं हम साहूकार हैं। साहूकार नहीं है, वो लोकतंत्र के लुटेरे हैं। वो संविधान को खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। क्या आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? संविधान को तो मानते हैं नहीं, तो फिर क्यों घोषणा कर चुके हम संविधान को बदलेंगे? ये किसने बोला? बीजेपी ने, बीजेपी के मंत्रियों ने, केंद्रीय नेताओं ने। वो अक्सर कहते हैं, उनका तो मुद्दा ही है जी। ईवीएम में हैकिंग होती कैसे, कैसे इसमें छेड़छाड़ कर देते हैं लोग? देखिए, ये टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर सकता हूँ, मैं एक बिंदु सिर्फ कर सकता हूँ कि 20,000 वोटों का स्लैब किसी एक पार्टी से हटा करके दूसरी से चिपका दीजिए तो कम से कम 100 सीटों का फर्क पड़ेगा। 100 सीटों का। मैं 50,000 से जीत रहा था, 30 से जीत पाया। 15 से जीत रहा होता, 5 से हार जाता। कोई भी ऐसा हो, मैं एक पॉइंट बताया मैंने, मैं पूरा डिस्कशन 30,000 से ज़्यादा का कम का अंतर होता तो आप भी हार जाता। अगर मेरे को 20,000 से कम का अंतर होता तो मैं हार जाता चुनाव। मुझे 50,000 की बढ़त थी वहाँ पर, वो 30 पे पहुँच गए। होना क्या चाहिए? ऐसे तो आप बार बार हारेंगे आपके मुताबिक। हम लोग लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ने गए थे? हम यही तो कहने गए थे कि इटली से हटा दी ईवीएम, इंग्लैंड से हटा दी, फ्रांस से हटा दी, आयरलैंड से हटा दी, नीदरलैंड से हटा दी, जर्मनी से हटा दी, अमेरिका से हटा दी, तो भारत कौन सा देश है इसे क्यों नहीं हटा रहा है? क्या डेमोक्रेसी को बचाना नहीं चाह रहा कि जी? जब वो देश डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, जबकि वहाँ जनता कम है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना उनके लिए कठिन है, हमारे लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना सरल है, तो हम क्यों नहीं करा रहे? Well, it seems that the Congress party often takes this position only when they lose an election. But that same very logic or argument does not really apply when they win an election. This is the question that was also asked to some of the legislators who won from a state like Telangana, to which
there was no answer. You already heard a legislator from Madhya Pradesh once again repeating this entire line that there is a problem with the EVM, not really questioning the fact that there perhaps could have been something wrong with the campaigning that was essentially done by the Congress party as far as the Hindi heartland is concerned. Not to forget the repeated abuses that were essentially made when it comes to Sanatan Dharm, which did not really work well in states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, as well as in Rajasthan. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. On the other side, news and updates continue.